Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117, but do not forget to prefix 011, the STD code, before dialing these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, I am Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. And to answer our listeners' queries, today we are joined in by the financial expert Dr. Yamini Agrawal in our studios. Yamini, welcome to the show. Thank you. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक पहुंचाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी हम शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106। हमारा तीसरा नंबर है 2371-7117। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है निशित कुमार। The headlines: India and the United States of America sign an investment incentive agreement in Tokyo. At the stock markets, the Sensex trades 159 points higher about an hour before the end of trade. Nifty gains 17 points. Rupee weakens 18 paise against the US dollar, and commitment to continue with radical reforms to play a key role in taking the country to a leadership role in the global economy, says the CEO of Niti Aayog. भारत और अमेरिका ने टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। शेयर बाजार में सेंसेक्स कारोबारी दिन की समाप्ति से आधे घंटे पहले 159 अंक की बढ़त पर रहा। निफ्टी में 17 अंकों की वृद्धि, रुपया डॉलर के मुकाबले 18 पैसे कमजोर। और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण दिशा देने में देश की अहम भूमिका और इसके लिए सुधारों को जारी रखना हमारी प्रतिबद्धता। India and the United States of America signed an investment incentive agreement in Tokyo, Japan today. The agreement was signed by India's Foreign Secretary Vinay Quatra and the Chief Executive Officer of U.S. International Development Finance Corporation, Scott Nathan. It is expected that signing of this agreement would lead to enhanced investment support provided by Development Finance Corporation in India, which will further help in the country's development. Ministry of Finance said proposals worth $4 billion are under consideration by the corporation for providing investment support in India. The corporation has provided investment support in sectors like COVID-19 vaccine manufacturing, healthcare financing, renewable energy, financial inclusion, infrastructure, among others. The corporations or its predecessor agencies are active in India since 1974 and have so far provided investment support worth $5.8 billion. This incentive agreement supersedes the earlier agreement signed in the year 1997 between India and the United States. The agreement has been signed to keep pace with the additional investment support programs offered by the Development Finance Corporation. And we are joined in by our first caller from Chennai, Kashinath. Kashinath ji, welcome. Kashinath ji, can you hear us? Sir, good evening, Market Mantra team. Good evening, sir. डॉक्टर को भी मेरा नमस्कार है। गुड इवनिंग। डॉक्टर से मेरा सवाल ये है कि जो यूएस बैंक का घाव को भरेगा, मतलब पूर्व शेयर प्राइस में और कितना साल लगेगा, ऐसे डॉक्टर जी थोड़ा बता दीजिए। धन्यवाद जी। जी, आप अपना सवाल रिपीट करेंगे? मेरा सवाल ये है कि यूएस बैंक जो धक्का में है उसका घाव कब भरेगा, मतलब पूर्व शेयर प्राइस को कब आएगा, ये कितना साल लगेगा, ऐसा तो कोई बता नहीं सकता। फिर भी आप एक्सपर्ट डॉक्टर है, थोड़ा खिता करके अगर बता दीजिए कितना साल लगेगा, इसका बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। धन्यवाद जी। जी देखिए, स्टॉक प्राइसेस में जो मूवमेंट्स होती हैं, ऊपर जाती हैं या वो नीचे जाती हैं, बढ़ती हैं या घटती हैं, वो इस बात पे निर्भर करता है कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है
और मार्केट्स उस सिग्नल को पॉजिटिवली ले रही हैं या नेगेटिवली। जब भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, जिस माध्यम से वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है प्रॉफिट के द्वारा या अपनी बाकी किसी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के द्वारा, तो वो वहां पे स्टॉक बढ़ेगा। और जहां पर भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है, चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के हो, चाहे वो लॉसेस को लेकर के हो, वहां वो स्टॉक्स गिरेंगे। अगर इकोनॉमी पे भी देखा जाए तो इकोनॉमी का भी इफेक्ट पड़ता है स्टॉक्स के ऊपर, जो ओवरऑल इम्पैक्ट करता है मार्केट्स को, जैसे हम स्टॉक मार्केट्स का बढ़त या घटत देखते हैं। और कोलकाता से हमारे साथ फोन लाइन पर अनामिका जुड़ी हुई हैं। हेलो अनामिका जी आपका प्रश्न पूछिए। हेलो जी, आपका सवाल क्या है? सवाल है कि FMCG कंपनी, one company head office is in Kolkata and another head office in Mumbai, but their prices are quite so different. Hello जी, could you please repeat your question? It's not very clear here. Hello. आप अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? I want to know why the FMCG company prices are so different. I can't name these companies. One head office is in Kolkata and another head office is in Mumbai. You're asking if their sizes are different. Huh? Pricing is different. जी. See, FMCG products are fast-moving consumer goods, so they depend upon a variety of things. Depending upon how they want to attract the retail investor, they put in a lot of investments on advertising, branding, and putting their products in the niche categories for which they charge. Product differentiation is primarily their key in which they sell their products. So because of branding, their pricing is usually different. As far as they are being headquarters, it would depend upon which is the parent company and how it is started its business, and that is how the headquarters are based. Our next caller is Jay Saluja from Delhi. Saluja ji, welcome. Good evening to Yamini and the team. Yeah, good evening. My question is that often in the past I have seen that you have very good knowledge about the stock market. So kindly tell me when the bottom will be made and at what level the bottom will be made. I understand it is very difficult to predict, but I just want to know your views so that I can take action accordingly. Thank you. Well, it is, as you said, it is very difficult to predict the bottom, and we do believe that the markets right now are at a very low level. I don't see it going further low because I do see that about 1,200 companies are likely to give their earnings, which is the last leg of the corporate earnings. Also, the F&O expiry is there due in the week. What will play an important role is how the external factors in the international markets turn out, which includes the Russian-Ukrainian war, also the COVID situation in China, and the overall central bank stances on the tightening of the money. If the inflation pressures continue to rise, the markets will dip further down. But if the inflation pressure is reduced by monetary support or the fiscal support, monetary support which the RBI has given in terms of raising the rates, as well as the fiscal support which lately the government has given by reducing the petrol and diesel prices, will help the markets pick up and gain further. और अतानु सहा है कोलकाता से. हेलो. Good evening, ma'am. I'm from Atanu from Kolkata. My first question is, what's different between a Security Exchange Board with Security Exchange Commission? And my second one is, do we expect fractional purchase instead of share purchase? Thank you. Well, your first question is regarding the Security Exchange Board. Security Exchange Board is the regulatory body for maintaining the regulations in the capital markets, which includes the NSE, BSE and many other stock exchanges that are there in India. So the Security Exchange Board is primarily to look after that. When you talk about Security Exchange Commission, usually when you set up committees and you identify a group of members for that, and they are then surveying a particular cause, that board is then defined as Security Exchange Commission.
As far as fractional trading is concerned, that is not there. So we have full trading that takes place as of now for stocks. Next caller is Prem Sagar from Amritsar. Prem Sagar ji. नमस्कार. नमस्कार. अमृतसर से प्रेम सागर बोल रहा हूँ. जी जी, सवाल पूछें अपना. मेरा सवाल ये है कि ये जो पेट्रोल और डीजल और सब्सिडी दी गई है रसोई गैस पर, उस पर उससे महंगाई में कोई फर्क पड़ेगा, कुछ कम होगा क्या? जी, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस के कम होने से सीधा असर महंगाई पे पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल सबसे बेसिक इनपुट होता है या रॉ मटेरियल होता है सारे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या और इंडस्ट्रीज के लिए. जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी. क्योंकि सरकार ने ये कटौती की है, उसका सीधा असर एक आम आदमी के बजट्स पे पड़ेगा, खास तौर पे वेजिटेबल प्राइसेस और फूड प्राइसेस पे, जो एक खासा बजट माना जाता है एक आम आदमी के लिए. और बाकी के चीजों के ऊपर भी असर करेगा, क्योंकि इनका इनपुट रहेगा. बिलासपुर से के रॉय हैं हमारे साथ फोन लाइन पर. हेलो मिस्टर के रॉय, आप हमसे प्रश्न पूछें. हेलो, आप अपने रेडियो सेट को ऑफ कर लें और फिर सवाल पूछें. हेलो मिस्टर के रॉय जी, आप अपने रेडियो सेट को प्लीज ऑफ करें, उसके बाद फिर सवाल पूछें. हाँ, कर दिया है, ऑफ कर दिया. जा आप सवाल पूछें. हाँ, सवाल पूछिए. हाँ, मार्केट मंत्रा टीम, गुड इवनिंग. हाँ जी, गुड इवनिंग. हाँ, मैडम से मेरा सवाल ये है कि हमारी इकोनॉमी मेनली इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे कंट्री में बारिश कैसे होगी, और अगर अच्छी बारिश हुई तो हमारी इकोनॉमी पे इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है. तो क्या अगर इस साल अच्छी बारिश हुई तो उसका असर जो वॉर के कारण जो इकोनॉमी पे अभी दबाव है वो कम होगा, और अच्छी बारिश की वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ दिखेगा क्या? आपकी स्टडी के हिसाब से ये क्या हो सकता है, बताइए. धन्यवाद. जी देखिए, मानसून पे इसलिए निर्भर करती है क्योंकि हमारी एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है जिसका 14% जीडीपी का एग्रीकल्चर से आता है, और जिसमें माना जाता है 42% के आसपास लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं. जैसे ही मानसून आता है और उपज बढ़ती है और क्रॉप्स अच्छे पैदावार करते हैं, उनको जब बेचा जाता है उसका सीधा असर फार्मर्स की इनकम्स पे पड़ता है, और उससे जो डिमांड क्रिएट होती है उससे इकोनॉमी बूस्ट होती है. जहां तक अभी इन्फ्लेशन की बात है या इकोनॉमी के चैलेंजेस की बात है, उसमें खास तौर पे एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. जो महंगाई का दर है वो एक ग्लोबल फिनोमिना है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो काफी हद तक बढ़ गई हैं. और क्योंकि वो बढ़ गई हैं, वो सीधा हमारे देश में महंगाई का दर बढ़ा रही हैं, जिसमें आपने देखा होगा सरकार ने उसे कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को कम किया है. दूसरा फैक्टर जो प्ले कर रहा है वो है चाइना में कोविड की वजह से लॉकडाउन्स है, और क्योंकि चाइना एक ग्लोबल सप्लाई चेन प्रोवाइडर है, उसके जो सप्लाईज हैं वो रुक जाती हैं, तो जो महंगाई का दर है वो ग्लोबल सप्लाई चेन बॉटलनेक्स की वजह से भी बढ़ जाता है. ये दो प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से जो महंगाई की असर है वो हमारे ग्रोथ रेट में कट करेगा, जो कमी करता है, और उसका असर हम देख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं उन्होंने अपने ग्रोथ रेट के एस्टिमेट्स को कम कर दिया है. पहले वो ज्यादा कर रहे थे, अब 8.2% पे माना गया है, IMF कर रही है, और 7% से ऊपर ही रहेगा ये माना जा रहा है. और अब सेंसेक्स की बात करें तो घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती बढ़त को खत्म करते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.1% यानी कि 38 अंक नीचे आकर 54,289 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी आज 0.3% यानी कि 51 अंकों की गिरावट के साथ 16,215 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.3% नीचे आ गया, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.6% की गिरावट आई.
At the stock markets, erasing all its early gains, the Sensex at the Bombay Stock Exchange ended 38 points or 0.1% lower to end at 54,289 today. The Nifty at the National Stock Exchange fell 51 points or 0.3% to 16,215. And in the broader market on the BSE, the mid-cap index shed 0.3% and the small-cap index dropped 0.6%. Among the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, the metal index was the leading loser, tanking 8.3%. The basic material index slumped 4.1%, the oil and gas index dropped 1.7%, the energy index declined 1.5%, the realty index lost 1.2%, the utilities index slipped 1.1%, the power and telecom and healthcare index fell 1% each, and the finance index shed 0.3%. And among the advancing indices, the auto index advanced 1.9%, the capital goods index rose 0.9%, and the IT, the consumer durables and consumer discretionaries gained 0.8% each, and the tech index added 0.6%. और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर $1 के मुकाबले 77 रुपए 52 पैसे पर आ गया था। और निवेशकों की तमाम चिंताओं के बावजूद की मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरें वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बाधा उत्पन्न करेंगी और चीन में वर्तमान कोविड की स्थिति ने संशय की स्थिति बना रखी है। ऐसे में आज एशियाई बाजारों का मिला जुला रुख रहा। जापान का निक्केई कारोबार में 1% के लाभ में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक ने इंडेक्स में बढ़त दर्ज की और दक्षिण कोरिया का कॉस्ट भी 0.3% ऊपर आ गया। हालांकि हांगकांग के हिंग सेंग में 1.2% की गिरावट दर्ज की गई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.8% नीचे आ गया। लेकिन यूरोपीय शेयर बाजारों ने आज एशियाई बाजारों के विपरीत प्रदर्शन किया। अंतर दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.9% ऊपर रहा, जबकि फ्रांस का कैग भी बढ़त में रहा और जर्मनी के डेक्स में 0.7% की बढ़त दर्ज की गई। Next caller is Ratnakar from Mumbai. Ratnakar, welcome to the show. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रत्नाकर। हाँ, मेरा सवाल है कि अभी कमिंग डेज में ये सीमेंट और स्टील के सेक्टर और आईटी सेक्टर में शेयर बाय करना अच्छा रहेगा क्या? वो तीनों सेक्टर का प्रोग्रेस कैसा दिख सकता है? जी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी निवेश हो रहा है और जिस निवेश को देखा जाए उसके हिसाब से सीमेंट और स्टील सेक्टर एक अच्छे सेक्टर रहेंगे निवेश के लिए और इनमें बढ़त ही नजर आएगी। And moving on to some other stories, the Chief Executive Officer of Niti Aayog, Amitabh Kant, says India is in the midst of a major transformation in the digital space, and a strong political leadership and the commitment to continue with radical reforms would play a key role in taking the country to a leadership role in the global economy. Addressing a breakfast session on the sidelines of the World Economic Forum Annual Meeting 2023, Amitabh Kant said a slew of radical reforms has been carried out by India in the recent years that have put India on a growth trajectory for many decades to come. He also called upon the global investors to join the India growth story. At a session organized by the industry body CII and the Indian diaspora, Amitabh Kant further said that the Startup India movement has seen the number of startups in the country rising from double digits to tens of thousands now. और कोलकाता से कुशाण है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी, आपका प्रश्न क्या है? हेलो सर, गुड इवनिंग मार्केट मोन्तो सर। गुड इवनिंग सर, मेरा जो क्वेश्चन है सर, मैंने सर देखा है कि कोई सेक्टर में किसी सेक्टर कोई पार्टिकुलर डे में कोई स्टॉक बहुत अच्छे से रिटर्न माने प्राइस बहुत माने रेज करता है सर कोई एक पार्टिकुलर डे में जी, whereas throughout the year price gain averaging. Sir, what is the question? जी देखिए, कभी कभार स्टॉक्स के अंदर सिग्नल्स आते हैं जिन्हें उसकी परफॉर्मेंस पे निर्भर करते हैं। जैसे कभी कभार स्टॉक्स अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करें या अपने बोर्ड पे किसी को ला रहे हैं वो डिक्लेयर करें या उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लिया हो वो डिक्लेयर करें। जैसे ही वो कोई भी ऐसी बात करते हैं जिसमें मुनाफा दिखता है या ग्रोथ नजर आती है, उसको इन्वेस्टर्स वैल्यू करते हैं और उस स्टॉक को हायर प्राइस पे खरीदते हैं। ये निर्भर करता है कि मार्केट्स कैसी रहती हैं, कि वो स्टॉक की ट्रेडिंग कैसी रहेगी और कितने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी। Well, it's time to slip into a quick commercial break, but do stay tuned in because we have lots coming up on the other side.
उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम मार्केट मंत्रा में। और इस बीच हमारे साथ में हमारे अगले कॉलर हैं पंजाब से गुरदर्शन। हेलो। हेलो जी, आपका प्रश्न क्या है? हाँ जी नमस्कार सर जी, गुरदर्शन लाल का पिंड कैरो, जिला तरनताਰਨ, पंजाब तो बोल रहे हैं। जी स्वागत है आपका। प्रश्न पूछिए आपका। प्रश्न पूछिए आपका। हेलो जी बोलिए बोलिए। हाँ जी सर जी, मैं ये पूछना चाहना वा, मतलब साडा आर्थिक तौर पे देश बहुत मजबूत हैगा जी। हाँ जी, बाकी मतलब के बहुत मतलब के गरीब स्थिति में विचारे कि साडे दे देश से भी थोड़ा बहुत एक 8 साल से फर्क कुछ पै सकता, इस बारे में पूछना चाहना। थैंक यू वेरी मच। वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ असर पड़ सकता है, इसके बारे में पूछ रहे थे वो। जी देखिए, हमारी इकोनॉमी एक ग्लोबल इकोनॉमी है और इसके ऊपर बहुत सारे देशों का असर पड़ता है। जैसे अभी जो है यूक्रेन और रशिया वॉर हो रही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं और हम क्योंकि उसे इंपोर्ट करते हैं तो हमारे महंगाई दर पे भी असर पड़ रहा है। वैसे ही अगर संसार भर में जो है लॉकडाउन्स थे, तो क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे थे तो उसका असर सीधा हम पे पड़ा। हम जो अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए या अपने ट्रेड के लिए जो ट्रांजैक्ट करते हैं वो सीधा हमारी बाकी की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। वो कितना निवेश करते हैं हमारे कंट्री के अंदर और हम कितना बाहर के अंदर निवेश करते हैं, इस पे भी निर्भर करता है। Our next caller is Pawan from Himachal Pradesh. Pawan, welcome to the show. Pawan, can you hear us? नमस्कार जी मैडम जी। नमस्कार। आप अपना रेडियो सेट बंद कर लें, उसके बाद बात करें। हाँ, प्रश्न पूछें अपना पवन। सर मैं हिमाचल प्रदेश से पवन कुमार बोल रहा हूँ। जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। जी जी जय। सर मैं एक्चुअली ये पता करना चाहता हूँ, मेरी वाइफ जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी पहले, अब जो है वो उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नई ऑर्गेनाइजेशन में चले गए हैं। उनका जो है वो पहले पीएफ कटता था, जो अब जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ज्वाइन किया उसमें पीएफ नहीं कटता है। और इसमें जो है वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनको जो पहले कटता था उनका पीएफ, उसमें जो पैसा डिपॉजिट है क्या उस पे जो है वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा और वो कितने समय तक मिलता रहेगा, और नया जो है वो अगर नया खुलाना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी, आप जिस नए ऑर्गेनाइजेशन में आपकी वाइफ गई हैं वहां पे वो अपना पीएफ अकाउंट जो है बता सकती हैं और उसी में जो उस ऑर्गेनाइजेशन है और अपना कंट्रीब्यूशन उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। जो भी इंटरेस्ट आएगा जब तक वो पीएफ अकाउंट बंद नहीं करती तब तक वो अकाउंट चलता रहेगा। देहरादून से तरुण है हमारे साथ। हेलो। Yes, good evening to all. जी, good evening. Yeah, I have 3 questions. I will ask them quickly. Number 1 is, given the 7.5% GDP growth rate, which sectors are supposed to do better for the Indian economy, especially given the fact that the rural consumption is not in good shape, and the sectors like other than cement and steel, which has been mentioned earlier, what are the other sectors which are likely to do better? Second question is linked to the metals. What was the reason for curbing doing this export duty cut exports curbs today? The government has taken decision yesterday for the raw material for linked to the metal sector. Are we looking at that much demand within India, or it is just to curb the inflation? And the third is related to the insurance sector. What are the risk reward for the insurance sector from the valuation and demand perspective in the future? Thank you. जी, आपका पहला सवाल 7.5% जीडीपी ग्रोथ की बात है और जहां तक उम्मीद है वो ये ग्रोथ अचीव की जाएगी और जो ओवरऑल डिमांड है
वो रिकवरी के वजह से काफी हद तक बढ़ेगी और जो पेंटअप डिमांड है वो भी आगे कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि मॉनसून माना जा रहा है कि काफी अच्छा रहेगा। उसका भी असर जो है रूरल कंजम्पशन पे पड़ेगा, और रूरल कंजम्पशन एक पर्टिकुलर ऐसा कंजम्पशन रहा है जो कंटिन्यूअसली सपोर्टिव रहा है इकोनॉमी की तरफ, खासतौर पे क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.9% ग्रोथ देखी गई है और माना जा रहा है कि इंडस्ट्री में भी 11% के आसपास ग्रोथ देखी जाएगी और सर्विसेज सेक्टर में 8% के आसपास ग्रोथ देखी जाएगी। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेक्टर्स रहेंगे। जहां तक एक्सपोर्ट्स को कर्ब करने की बात है, एक्सपोर्ट्स को कर्ब इसलिए किया जाता है जब डोमेस्टिक स्थिति में माना जाता है कि सप्लाई कम होने की वजह से जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो सफर करेगा, और ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके एक्सपोर्ट्स को जो है रोका जाता है। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से व्हीट या मेटल या कोई भी और एक्सपोर्ट्स को अभी नियंत्रित किया गया है। इंश्योरेंस में ओवरऑल मार्केट्स प्राइवेटाइज्ड हैं और एक डोमिनेंट प्लेयर है और बाकी सारे स्मॉल प्लेयर्स हैं, और काफी हद तक उन्होंने काफी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर किए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी लेकर के, जो सरकार ने भी ऑफर की है, जिसके मद्देनजर काफी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। और कोई व्यक्ति जो निवेश कर रहा है उसके लिए रिस्क तो है ही, क्योंकि जब वो निवेश कर रहा है वो नहीं जानता कि वो कितना ग्रोथ करेगा, पर क्योंकि ये सेक्टर एक बड़े वॉल्यूम्स पे काम करता है और मार्जिन्स छोटे रखता है, तो इसमें काफी हद तक रिवॉर्ड्स रहते हैं अगर सही तरीके से निवेश किया जाए तो। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टोरी. Global crude oil prices gained today with U.S. fuel demand, tight supply and a slightly weaker U.S. dollar supporting the market as Shanghai prepares to reopen after a 2-month lockdown. Fuel worries about a sharp slowdown in growth. So the Brent crude futures climbed $1.12 to trade at $113.67 a barrel, and the U.S. crude futures added 96 cents to $111.24 a barrel. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना आज 151 रुपए घटकर 51,067 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ जुलाई अनुबंध वाली चांदी 281 रुपए की तेजी के साथ 61,700 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर जा पहुंची। नेक्स्ट कॉलर इज जितेंद्र फ्रॉम जयपुर. जितेंद्र. हेलो. हाँ जी जितेंद्र, प्लीज. हाँ जी, सवाल पूछे? जी पूछिए. हाँ अच्छा, जैसे कि कोई कंपनी है, उसका प्रॉफिट तो रेगुलर है 3, 4, 5, 6 साल से प्रॉफिट में, लेकिन उसका और बाकी चीज कोई बढ़िया नहीं है, आरओसी, डेब्ट टू इक्विटी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं? प्रॉफिट ठीक है जी, ये कहना मुश्किल है। अगर बाकी की रेशियोज अच्छी नहीं है तो ये जरूरी देखना है कि ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है। अगर आपको ये प्रॉफिट ऑपरेशनल प्रॉफिट है, जिसका मतलब जिस कार्य में वो कंपनी है, जिस बिजनेस में वो है, अगर वो उस बिजनेस में प्रॉफिट मिल रहा है तो वो एक अच्छा प्रॉफिट है। इसके साथ साथ आप एक रेशियो और देखिए जिसे कहते हैं एक्टिविटी रेशियो, जिसके अंदर पता चलता है कि किस तरीके से जो फिक्स्ड असेट्स है या जो इन्वेंट्री है वो कैसे टर्नओवर कर रही है और किस तरीके से जो है वो कंपनी अपना प्रॉफिट कमा रही है। अगर ये रेशियोज अच्छी हैं तो अच्छा माना जाना चाहिए। बाकी इस बात पे भी निर्भर करेगा कि वो आगे किस तरीके से ग्रोथ करती है, क्योंकि जो स्टॉक्स है उसमें निवेश करते समय इंसान कैपिटल एप्रिसिएशन देखता है। जी यामिनी जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और चलने से पहले एक बार सुर्खियों पर नजर फिर से डाल लेते हैं। भारत और अमेरिका ने टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। शेयर बाजार में सेंसेक्स कारोबारी दिन की समाप्ति से आधे घंटे पहले 159 अंक की बढ़त पर रहा। निफ्टी में 17 अंकों की वृद्धि, रुपया डॉलर के मुकाबले 18 पैसे कमजोर। और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण दिशा देने में देश की अहम भूमिका और इसके लिए सुधारों को जारी रखना हमारी प्रतिबद्धता। India and the United States of America sign an investment incentive agreement in Tokyo at the stock market. Sensex trades 159 points higher about an hour before the end of trade. Nifty gains 17 points. Rupee weakens 18 paise against the dollar. And commitment to continue with radical reforms to play a key role in taking the country to a leadership role in the global economy, says the CEO of Niti Aayog. Well, that's it in this edition of Market Mantra. From all of us here, it's goodbye till we meet again the next time. Namaskar.